Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İyi gidiyorum. Ne yapıyorsun? Not getting. हम्म, Na, ने या प्योर को कंट्रैक्शन के साथ बोले ना तो इवन ना प्योर सुन की बजाय ना पियोन ना पियोन तो उसको उसको कहते हैं आप क्या कर रही हैं या आप कैसी हैं के मानी में भी इस्तेमाल हो जाता है ना सर। वालेकुम सलाम ना पियोन तो आप कह सकती हैं hiçbir şey yapmıyorum dersteyim तो şey öğreniyorum hiçbir şey वाली बात अलग करके कुछ भी नहीं कर रही हूँ. dersteyim तो şey öğreniyorum. अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं. जी सर, मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तुर्किश जुबान में मेरे साथ जो बात करना चाहता है करे जितनी भी कर Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisiniz? Pakistanlıyım. Sen nerelisin? Ben de Pakistanlıyım. Hı hı. Memnun oldum. Ben de. Ama başka bir soru sorarsın. Bu kadar yeterli değil. वापस बोलिएगा सर। क्या कहा है? वापस बोला। मैंने कहा और सवाल पूछें ये काफी नहीं है. अच्छा। Adınız ne? कासिम अली सेनिन. अब्बास अली। başka? और क्या कर रहे हैं सर? इसको क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे थे? ने yapıyordunuz है पास्ट में माजी में. ने एक है yapıyordunuz. yapıyorsunuz. इस वक्त क्या कर रहे हैं और ने yapıyordunuz आप क्या कर रहे थे इससे पहले यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या कर रहे थे? Ne yapıyordunuz? Ben hiçbir şey yapmıyordum. Çocuklarımla bir şeyler oynuyordum. Tamam. कोई और कन्वर्सेशन कर सकता है तो करे मेरे साथ. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nerelisin? Pakistanlıyım sen. Ben de. Ne yapıyorsun? Dersteyim. Türkçe öğretiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey değil. Hiç. Tamam. Başka bir soru sormak ister misin? Sen şimdi nerede? Ben şimdi evdeyim. Sen başka bir soru sormak ister misin? Yok. Tamam. Sen neredesin? Ben şimdi lokantada. Lokantadasın. Tamam. Bugün okula gittin mi? Hayır, bugün okul Okul yoktu. Bugün tatildi. Okula gitmedin. bugün bayram var. Bayram tatil. Tatil daha iyi. Tatildi. Daha tamam. या आप ये कह सकते हैं bugün dersim yoktu. O yüzden okula gitmedim. ठीक है. बाकी लोगों में से जो बात करना चाहता है टर्किश में करे मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। सलामुन अलैकुम टर्किश में जो अंदाज है, अस्सलाम वालेकुम भी ठीक है, समझ जाते हैं ये लोग, लेकिन टर्किश में ये करते हैं सलाम या फिर कहते हैं सलामुन अलैकुम। तो इनमें से कोशिश करें कि जो ये बोलते हैं वो वाला अंदाज अपनाएं। ओके सर। Selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Hı hı. Nerelisiniz? Siz nerelisiniz? Ben Pakistanlıyım ama şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Sen Ben de Pakistanlıyım. nerede kalıyorsun? Sir. Nerede yaşıyorsun ya da kalıyorsun? कहाँ पे रहते हैं? Sir, Beria Town'de yaşıyorum. Hı hı. Evi बाइक Yes sir. सही है। और सवाल पूछें। Kaç yaşındasın? Ben 34 yaşındayım, sen? Ben 15 yaşındayım. Tamam. Şimdiye kadar nereleri okudun? Neler okudun ya da nerelerde okudun? कहाँ पे पढ़ा है या क्या कुछ पढ़ा है? दोनों में से किसी एक बात का जवाब दे सकते हैं। Ben kutsal Kur'an ezberleyeceğim. कुरान ezberliyorum या फिर ezberleyeceğim, ठीक है। Tamam. Bundan Memnun başka bir şey yapmadın mı? Yes sir. Bundan başka bir şey yapmadın mı? इसके अलावा आपने कुछ और नहीं किया? Evet. Ben okulda gidiyorum. Okula Okula gidiyorum. gidiyorum. Hı hı. Neler okuyorsun okulda? इस्लामाबाद okul. क्या पढ़ते हैं आप? स्कूल में क्या पढ़ते हैं? सर इसको क्या कहेंगे? मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ सर. Özel ders alıyorum. Private classes लेता हूँ. Yes. Özel ders हम्म। और कोई बात मैं- करना चाहता है जी मेरे साथ टर्किश में? आप में से जो भी बात करना चाहता है मेरे साथ करें। जो भी करना चाहता है आप में से और जो कुछ करना चाहता है वो दोनों तरह से है कि आप जिस तरह से भी करना चाहें बात कर सकते हैं। Merhaba, beni adım Merhaba, Nurullah. Senin adın ne? benim adım Kasım. Senin nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nerelisin? Ben Pakistanlıyım. Sen? Siz? Ben Bangladeşliyim. Bangladeş'te Memnun oldum. hangi şehirde kalıyordunuz? Sir नहीं समझा. बांग्लादेश में आप किस शहर में रहते थे? Ben Dhaka, Dhakka'da yaşıyordum. Dhaka'da yaşıyorum. Şimdi İstanbul'da kalıyorum ya da yaşıyorum. Şimdi ya कह सकते हैं şu an İstanbul'dayım. Esenyurt. इस्तांबुल के अंदर आप ये भी कह एहसन यूर्ट İstanbul'dayım इस तरह भी कह सकते हैं। Ehsen Yurt Mahallesi'nde, İstanbul'da Ehsen Yurt Mahallesi'nde kalıyorum. इस तरह भी कह सकते हैं। Memnun oldum. Ben de। और भी कुछ बोल सकते हैं इसके बाद? होशा कल गुले गुले। Okay, हाँ, होशा कल. उसके अलावा कल वाले सवाल जो हम कल एंड पे कर रहे थे प्रैक्टिस, उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं आप लोग। जी, जो नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया अभी अभी,
आप लोगों में से जो भी मेरे साथ टर्किश में कन्वर्सेशन करना चाहता है कर लें। कोई भी नहीं करना चाहता? किताब पे आ जाए। Assalamualaikum sir. अलैकुम सलाम। Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nerelisin? Pakistanlıyım, siz? Ben de Pakistanlıyım. Hı hı. Şimdi İstanbul'da kalkıyorum. Yaşıyorum ya kalıyorum. Yaşıyorum. Hı hı. Sen Ben Trabzon'da yaşıyorum. इसको इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं, ben Trabzon'dayım. मैं Trabzon में हूँ. şimdi nerelisin? Şimdi neredeyim? Şimdi evdeyim. Evdeyim या फिर कह सकते हैं uzaktan ders veriyorum. Uzaktan ders veriyorum. Türkçe dersi veriyorum. Sir मैं ये बोल सकता हूँ ben de sınıftayım. Ben de sınıftayım, ders alıyorum. Ben de sınıftayım. Sınıftayım, ders alıyorum. Ders alıyorum. Hı. जी Trabzon hava nasıl? Trabzon'da hava nasıl? Trabzon'da hava şimdi biraz ılık. या आप कह सकते हैं Trabzon'da हवा ılık. ılık का मतलब होता है वार्मिंग। जो बाहर की हवा होती है वो थोड़ी सी ठंड से गर्मी की तरफ जो एक शिफ्टिंग होता है ना, ट्रांजिशन जोन, ये उसमें है, उसको ılık बोलते हैं। Trabzon'da hava ılık. Trabzon'daki mevsime göre şimdi hava ılık ama eğer Pakistan'la yani şey yaparsanız o zaman buradaki hava hala da soğuk. Yani ben Lahore'da kalıyordum. Oradaki şimdi sıcaklık bence 30 derece falan olmuş. Ama şu anda Trabzon'da 10-12 civarında. Bakayım. Şimdi İstanbul çok sıcak. Ne kadar derece çıktı? Sıcaklık ne kadar? 25. 25 mi? Ya. Trabzon'da şimdi 17 derece. Tamam. Başka bir soru sormak ister misiniz? Başka kimse var mı? Soru soran biri var mı? सवाल पूछने वाला कोई और है? चलें, कोशिश किया करेंगे इस तरह की कन्वर्सेशन जो है वो साथ साथ हमें मौका मिलता रहा करे, ताकि हम कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बिल्टअप हो कि हम कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इससे आगे भी कुछ करना सीखे। बातचीत जो हमने अभी की है ना, ये तो पहले सेक्शन का पहला हिस्सा ही हमने सिर्फ कवर किया। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इससे आगे भी जो चीज़ें हमने कवर की हैं ना, उनको भी इसके अंदर लेके आएँ। अपनी मतलब रोज़ जब आप रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो फिर आपके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आएंगे। अभी तो आपके जहन में वही चीज़ आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नस्ल से नस्ल, लेकिन आप कोशिश करें कि वो किम, वो ने, उसके अलावा वो कलम, वो चांताम, इस तरह के सवाल भी साथ साथ शामिल करें। ठीक है? और इसको एक जनरल आप वो ने की बजाय ना, आप इसको इस तरह से भी करके पूछ सकते हैं, बुनु
ने diyorsunuz, आप लोग इसको क्या आप इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तुर्क लोगों से आपको किसी चीज का नाम नहीं आता, आप इशारतन तो कह देते हैं 1 किलो, 500 ग्राम फॉर एग्जांपल, या जो है 21 ग्राम। ये ग्राम और किलोग्राम तो वैसे ही है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आपको चीज का नाम नहीं आता, आपने चीज ले ली, इतना तो हो गया, आपका काम तो हो गया, आपने कह दिया उसको भी इशारे में कह दिया 20 किलो 21 किलो, लेकिन आप उसको नाम नहीं आता, या फॉर एग्जांपल आता था ज़हन से निकल गया, तो आप उसको इस तरह करके जुमले में भी पूछ सकते हैं। बुनुन ने diyorsunuz, ठीक है, बुनुन अदन ने, बुनुन अदन ने, ठीक है जी। सर ये भी बोल सकते हैं वो इसमें ने। बुनुन इसमी ने, इसमी, बुनुन, यहाँ पे बुनुन से आगे इसमी ने, इस तरह भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं आता, आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बाज़ार जाएं, कोई चीज़ ख़रीदें, आपको अगर नाम नहीं आता तो ये नहीं है कि चलो मैंने चीज़ ले लिया, गुजारा हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं पूछता हूँ। आप कोशिश किया करें, हर बार आप उस चीज़ का नाम पूछ लिया करें, क्योंकि जब आप बार बार करेंगे, पूछेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आपको इस तरह से प्रॉपर बैठ के याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप पैसे दे रहे होते हैं ना, तो अगला इतना उसको मुश्किल महसूस नहीं होती कि वो आपको नाम बता दे, तो आप उससे जो है ना वो इतना कह सकते हैं, बुनु ने diyorsunuz, बुनु इसमी ने, बुनु नदर ने, इस तरह करके कर सकते हैं। चलें जी, अब हम हर एक चैप्टर के एंड पे जो है वो कल्चर के हवाले से, तुर्की का कल्चर क्या है और तुर्की के कल्चर को दूसरे मुल्कों के कल्चर के साथ जो मिलती हुई चीज़ होगी उस चैप्टर के लिहाज से, उसका जिक्र किया जाएगा, और साथ जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है और कॉमन चीज़ें क्या है। बुरसनेरे से ये कौन सी जगह है, हरीता या बकलम। यहाँ पे अभी तक हमने चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और लोगों की नेशनलिटीज़ वगैरह पूछ रहे थे, तो उस लिहाज से यहाँ पे इन्होंने जो है वो नंबर 1 इधर तुर्की रखा हुआ है, ठीक है जी, और इसके साथ जो है वो नंबर 2 चाइना है, चीन, टर्किश में हम कहेंगे, इसको हम तुर्की कहेंगे, ठीक है जी, और इसको हम जो है वो रूसिया कहेंगे, और नंबर 4 को हम इतालिया कहेंगे, नंबर 5 को हम मिस्र कहेंगे, और इसको जो है वो हम अमेरिका बोलेंगे, ठीक है जी। इस तरह करके यहाँ पे सिर्फ इतना सही है कि नाम ही टर्किश के अंदर, मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की है, उसमें मुल्कों के नाम और उनका जो बाशकेंत बोलते हैं टर्किश के अंदर, दारुल खिलाफा जो है ना, बाशकेंत बोलते हैं, और अगर नाम मुल्क के नाम के साथ करेंगे तो बाशकेंती हो जाएगा। तो अमेरिका नन बाशकेंती, जिस तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं, इस तरह तुर्की इन बाशकेंती, चीन इन बाशकेंती, मिस्र इन बाशकेंती, तो ये उस लिहाज से बाशकेंती हो जाए। तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ आप लोगों से उनके पूछ रहे होते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो, तो इसमें उन्होंने सिर्फ इतना सा किया कि मुल्क, एक मैप के ऊपर मुल्कों के नाम दिखा दिए 5-6, लेकिन आगे जब आप जाएंगे तो कम से कम 2, 3, 4 कंट्रीज के कल्चर के साथ जो है वो कंपैरिजन करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है माजिदा आफेदर्सिनिस। आफ, असल में यहाँ पे ये जो है आफेदर्सिनिस को अगर हम देखें तो आफ एथमेक से है, माफ और ये करना, कर एथमेक होता है करना, यपमक भी करना होता है, एथमेक भी करना होता है, लेकिन सिचुएशन के लिहाज से इसको बाज़ औक़ात डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो आफ आगे एदैर लगा हुआ है, ये यहाँ पे गेनिस ज़मान है, और सिनिस जो है वो सिस का सफिक्स है।
अफ एदरसिनिस, ये चीज़ें जितनी भी मैंने बातें की हैं ये हमने आगे जाके पढ़नी है। तो लेकिन यहाँ के लिए क्या ज़रूरी था आपको कि आपको मुखातिब करना आना चाहिए, और उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आफ एदरसिनिस या फिर पारदून भी बोलते हैं। ठीक है जी। एवेथ, इसको आप टर्किश अंदाज में पढ़ेंगे तो ये मागदा है, ठीक है जी, लेकिन इंग्लिश के लिहाज से ये माजदा भी है। तो दोनों तरह से बोला जा सकता है, वो बताना पड़ेगा कि जी क्या उसकी किस तरह से एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। जब स्टूडेंट आए होते हैं मुख्तलिफ तरह से मुल्कों से, तो वो अपने नाम की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बताते हैं, तो टीचर कोशिश करते हैं कि उनकी ज़ुबान के अंदर या इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन बनती है वही करें। लेकिन बाज़ औक़ात वही जो उनकी टर्किश अंदाज में जो बनता है, जैसे अगर मेरा नाम ऐसे है, कासिम है, लेकिन मैं उनको बताऊं भी ना, जितनी बार मर्जी बताऊं, तो मुझे खासम करके बोलेंगे, खासम। इनका एक महीना भी है नवंबर, उसको भी खासम बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, आफ एदरसिनिस को आफे दरसिनिस, ठीक है, आफे दरसिनिस, माफ कीजिएगा, एविथ माजदा, हाँ जी माजदा, सोरू, इस लफ्ज़ की जगह पे हम कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं, जैसे कलम ने देमक, ठीक है, जैसे चांता ने देमक, ठीक है जी, कुलेसी ने देमक, ठीक है जी, टावर, बैग, कलम। तो यहाँ पे इस लफ्ज़ सोरू की जगह पे हम कोई भी लफ्ज़ लगा के हम पूछ सकते थे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसने यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए, ये क्लास की ज़ुबान है, सनफ तीली क्लास की ज़ुबान, के क्लास के अंदर टेक्निकली चीज़ों को किस तरह डिस्कस किया जाएगा, ये जो रूटीन में क्लास बंदा नहीं ले रहा, वो जब आए क्लास के अंदर, चाहे उसको टर्किश आती है लेकिन वो चीज़ों को ना समझ सके, ठीक है, इसको क्लास की जो ज़ुबान है, टेक्निकल ज़ुबान वो कहते हैं। और हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाएगा इससे रिलेटेड। यहाँ पे क्या सिखाया, आप चूंकि अभी नए नए हैं इस टर्किश लैंग्वेज के अंदर, तो ये चीज़ सिखाई गई है कि आपने टीचर से पूछना है इस लफ्ज़ का मानी क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, सोरू, लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है। सोरू का मतलब जो है, अगर हम अपने लिहाज से करें तो सवाल या क्वेश्चन है, ठीक है। उसने पूछा है कि सोरू का क्या मतलब है, तो टीचर जवाब देती है, बैन सोरू सोरियोरुम, मैं सवाल पूछ रही हूँ, सेन जवाब वेरियोरसुन, तुम जवाब दे रही हो, ठीक है। अब इस चीज से जिस बंदी को ये नहीं पता कि लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है, उसको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि बैन सोरू सोरियोरुम सेन जवाब वेरियोरसुन। तो अब वो कहती है, और आपके लिए भी ये चीज़ है कि जब आप कहें कि इस लफ्ज़ का मानी क्या है, जो भी आपको लफ्ज़ का मानी जानना हो, तो आप कहेंगे, वो लफ्ज़ बोलेंगे और साथ कहेंगे ने देमेक। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको समझ आ जाती है, तो आप सीधा इधर आ जाएंगे, आप कहेंगे तशक्कुलार अनलदम, या तमाम अनलदम तशक्कुलार, ठीक है जी, तमाम का मतलब ठीक है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको नहीं समझ आया, तो आप क्या कहेंगे, उज़गुनुम अनलामियोर, मैं अफसरदा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। तो उसके बाद टीचर चूंकि एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में उसको एक्सप्लेन करने के काबिल भी होना चाहिए, और मोस्टली टीचर ऐसे होते हैं जो एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे उसने उसके ये कहने के बाद टीचर ने फिर क्या कहा, तमाम ठीक है, सोरू, सोरू लिख के उसके आगे डॉटेड डॉट्स लगा के, सेनिन अदन ने तुम्हारा नाम क्या, ये हमने शुरू में सीख लिया ना, तो ये बात हम कर सकते हैं यहाँ पे। सेनिन अदन ने, तो ये बताया जा रहा है ये सवाल है, और इसका जवाब है बेनिम आदम माजदा, मेरा नाम माजदा है, तो ये जवाब है, ठीक है जी। अब उस टीचर ने एग्जाम्पल दे के समझाया, तो अब वो कह रही है कि तमाम अनलदन तशक्कुलार, ठीक है मैं समझ गई, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। चलें,
ये एथमेक हर जगह लगाया जा सकता है किसी भी लफ्ज के साथ? क्या? एथमेक कहीं भी लगाया जा सकता है? इसमें ना थोड़ा सा जो वो एक्सप्लेन करते हैं एथमेक और यपमक में जो है, यपमक जो है जिसमें अथॉरिटी जिसके पास हो और वो बंदा काम करे, और एथमेक के अंदर जो है वो अथॉरिटी के बगैर वाला बंदा जो है वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी हद तक उसमें आता है। बाकी ये है कि बाज़ औक़ात ये फिक्स होता है, जैसे कहवालत एदियोरुम, मैं नाश्ता करता हूँ, इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है एज कम्पेयर टू के कहवालत यपियोरुम। ठीक है जी, उसमें अपना कंट्रोल होना और ना होना, इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने तुर्कों ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कहाँ पे दोनों का मानी करना है, लेकिन कहाँ पे किसको करना चाहिए, कोई इतना इन्होंने क्लियरली इसके ऊपर नहीं कोई जवाब दिया। अच्छा जी, अब आ जाता है अशाद की केलमे लेरी ताबलुदान बुललम वे इशारत लेलिम। मरहबा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसको कहते हैं एलेनलिम और एलेनलिम का मतलब खेलते हुए सीखते हैं। इसी तरह यहाँ पे मरहबा के बाद यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मासा लिखा हुआ है। ठीक है जी, और के किधर है? कलम उससे बन जाना चाहिए, कलम ये ले, ये कलम बन गया। इसी तरह ये ने बन गया। इसी तरह जो है वो ये किम बन गया। ठीक है जी, इसी तरह ये बू बन गया। ठीक है, सारे हो गए। मरहबा भी हो गया, ई भी हो गया, बू भी हो गया। शू जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। शू भी हो गया। ओ रह गया, ओ, ये इसको अलग से ओ ले लें। ओ भी हो गया, किम भी हो गया, ने अलग से किया हमने ने, हाँ ये जी सर, हो गया नहीं भी। ने भी हो गया, कलम भी हो गया, मासा भी हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आज के दिन में हमने कोशिश करनी है, 12 मिनट रह गए इसमें हो जाए चैप्टर, ज़्यादा देर होगी इस पे। अच्छा जी, नस्लसन का क्या जवाब होना चाहिए यहाँ से? एम। नेरिलिसन का क्या जवाब होना चाहिए? अनकरा लिए गोरुशुरुस का क्या जवाब होना चाहिए? गोरुशमिक उजैरे बिल्कुल ठीक है। ने एशिया प्योरसन। बैन ऑरेंजियम मरहबा का? मरहबा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मासा का प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे? मासा लार करेंगे। संदालिये लैर, संदालिये लैर, ऑरेंजी लैर करेंगे। लैर, सात सात लैर, लैर होगा क्योंकि ये जो है वो इस्तिस्ना है इसमें, कि ये एक्सेप्शनल वर्ड है, इसमें आ आने के बावजूद हमने लैर लगाया। ये उन अल्फाज में से है जो हमने सीखे थे। उसके बाद सिलगी के अंदर भी लैर आएगा, और सर सिल्गी मीन्स इरेजर, बेसर रबर जो पेंसिल को करने के लिए होता है ना, वो है। कलम लैर, कलम वाजो लैर, लार, वाजो लार, ओरेकमैन लैर, किताब किताब लार, लार, सुजुक लैर, सिनिफ सनफ लार। लार। ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। यहाँ पे इनको अरेंज करके लिखना था। ये तुर्की है, ये इतालिया है, ये रूसिया है, ये मिस्र है, ये इंगिलतेरे है, ये कोरे है, ये अल्मानिया है। यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है? जी,
चलें ये वाला सवाल करते हैं। बू ने बू और एथमैन, ये ठीक है? नहीं वो सर, वो जो किम होगा। गलत है उसके सामने हमने ये लिखना है और जो सही है उसके सामने दे लिखना है। तो बू ने बू और एथमैन ये गलत क्यों है? सर वो किम किम आएगा। होगा। इंसानों की बात हो रही है ना, इसलिए। यहाँ पे यस इंसान सर। की बात हो रही है तो किम आना चाहिए था। ये यानलिश था, इसको हमने इसके अंदर करेक्शन बता दिए। 7 जानलिश लैर, में सही है सर। यानलिश सही का है। मतलब दोरू रॉन्ग। सही। 7 लैर, ठीक है दोरू सर, राइट। कुछ कलम लैर, नहीं उच केलम लेर। नहीं से गलत है सर। गलत। दोरू क्या मिस्टेक है इसमें? लहर भी आ रहा है पर बता तो नहीं रहे। हाँ ये नहीं होना चाहिए था, या सर तो कुछ कलम वो होता। काउंटिंग भी है हाँ और लेर भी है। बिल्कुल। तो एक चीज जो है इसको खत्म करनी पड़ेगी, या तो कलम लहर या फिर उच्च कलम। तो ये भी यहाँ लिस्ट था। बुरस ओकुल, सही है। वो राशि उकुल सही है सर। दोरू, जका का जिक्र किया ना। बू सनफ नो, गलत। वो जानलिश। सनफ माँ। इसमें वॉवल हार्मनी का मसला है। वो स सनफ आना माँ, चाहिए था, यस ऊ सर। लगा हुआ था। यानलिश पूरा बोनलार किताब, यस सर, सही है। सही सर। दोरू किताब लार लिखा होता तो यानलिश हो जाता। नसल सन फ्रांसा लियम, ट्रांसिलियम। सही है। गलत यानलिश। गलत। यहाँ पे नसल नेरे लिसन नेरे होना नेरे लिस्टिन चाहिए। होगा ना, नेरे लिस्टिन होगा। नेरे लिसन होना चाहिए या फिर आगे ई में होना चाहिए। बुकिम बू अली, दोरू। वो किम बोली, यस सर, राइट। लास्ट शूनलार मासालार, जानलिश। सुंदर ये मासालार। लार नहीं होना चाहिए था। गलत है सर, गलत। लाड़ नहीं होना चाहिए। यस सर। जी यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। चले इसको इरेज कर देते हैं फिर। अच्छा, अब इससे नीचे वाला कि नेरे दे ने जमान ने सोलियोरुस कहाँ पे किस वक्त क्या कहते हैं? इशारत ले इल्म, निशान लगाते हैं। लोकांता, लोकांता पे क्या बोलेंगे? आफियत, आफियत ओलसुन। आफियत और सुन। गेजे में क्या कहेंगे? एगेजेलर, एगेजेलर। गेजेलर। हास्ताने में गैशमिश ओलसुन। दोम गुनु, मुतलू 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 इलार। इलार। यहाँ पे दोरू सेचे नहीं इशारत ले इल्म। अहमद के लिए क्या लगाना चाहिए? नस्ल कहाँ सिन। पे सर? नसलसन उसने कहा है तो उसको जवाब मिला ईयम तेशेकरद्रिम। अदनजने का जवाब क्या होना चाहिए? बैनी मदिम बेनिम मदिन। बैने मदन फातिमा। फातिमा। मेमनून ओल्दुम का क्या जवाब होना चाहिए? बैंदे मेमनून। बेंदे मेमनोल। बेनी मदम ओजान सेनी नदर ने क्या जवाब होना चाहिए? बैने मदम से ना सने न बैन। बेनी मदम सेना, और उसके बाद है मेमनून ओल्दुम, बेंदे मेमनून बेंदे ओल्दुम। मेमनोल। बे 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 आना चाहिए। नासल सन का क्या जवाब होना चाहिए यहाँ पे? ईएम, ये ईएम सेन नसल्स, सेन ई नसल्स, सेन, खाली सेन। सेन। तो उसने जवाब दिया बेंदे ईम तेशेकरद्रिम। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया ये। अब आप लोगों ने सब ने ये जो यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों को पढ़ना है और इसमें अपने आप को नंबर देने हैं। जब आप नहीं कर पाते जो जो चीज़, तो उसके लिए आपने अपने आप को एक नंबर देना है। अगर थोड़ा सा कर सकते हैं तो 2 देने हैं, कर सकते हैं तो 3 देने हैं, अच्छा कर सकते हैं तो 4 देने हैं, और बहुत अच्छा कर सकते हैं तो 5 देने हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मैं किसी पर्सन के साथ तारुफ कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, अपना जो है फैमिली नेम या लास्ट नेम या सर नेम जो है वो, और अपने मुल्क का नाम बता सकता हूँ। उसके बाद है चीज़ों का और लोगों का के बारे में पूछ सकता हूँ। और उसके बाद है चीज़ों की जगहों के बारे में पूछ सकता हूँ और बता सकता हूँ। तो इसमें हर एक सवाल के अंदर अपने आप को नंबर दें और मुझे अपना टोटल बताएं कि आपने कितने गेन किए, सब लोग, पुराने नए सब।
सर नंबर 3 क्या है? एक मिनट। नंबर 3 है कि आप चीजों के बारे में और लोगों के बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, वो कौन है। यस सर, ये तो आता है सर, सर। उसके नंबर बाद 4 बता 4 दें। ने अपने कंट्री। नेस्ले। जी, चीजों के बारे में, लोगों के बारे में पूछ सकता हूँ। और 4 के अंदर है कि जगहों की, चीजों की जगह पूछ सकता हूँ और बता सकता हूँ कि पुरादा, शुरादा, औरदा। ये तो अभी नहीं है। अच्छा। चले अपना टोटल काउंट बताएं कि आपने 20 में से कितने गेन किए। सर 15। किरण 15। आगे बाकी लोग। सर 19। 19। जेब। सर 15। अभी तक बात 15 सर। पे ही है। यस चलिए, सर। मैंने कहा अब 15 से ऊपर जानी चाहिए बात। वो सर आगे जो आप क्वेश्चन करते हैं वो नहीं दे पाते ना। अच्छा ठीक है तो फिर से जी, बाकी भी बताएं जरा। 16। 16 ठीक है। और ऑन आलते। ऑन आल्थ जी। चलें, जिनके जो है वो 12 से ज़्यादा है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने 12 से ज़्यादा गेन कर लिए हैं, वो पासिंग के करीब हैं। जो 14 से ज़्यादा ले रहे हैं वो समझ लें कि वो अभी तक तो ठीक चल रहा है उनका काम, लेकिन आगे जाके उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। जो 16 और अबव है ना, वो अभी तक रिलैक्स रह सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह करके आप लोग अपना देखें कि आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं। 16 प्लस वाले जो है ना वो ठीक है। अभी मेरी नज़र में जो 16 प्लस पे चले गए हैं ना, वो समझे कि 16 या उससे ऊपर, वो समझ लें कि उनका पहला चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है जी। सर एक सवाल था। जी जी। सर ये जैसे हम कसाब की या बनाओ की शॉप पे होते हैं, तो वो जब हमें सामान देते होते हैं कहते हैं आफियत हो, तो हमें जवाब में क्या बोलना चाहिए? तशक्कुर साउल। तशक्कुर। तशक्कुर या फिर साउल। ठीक। वो आफियत ओलसुन की बजाय आपको ये भी कह सकते हैं कैसी ने बरकत, तो उसका भी आप जवाब साउल कह सकते हैं। ठीक है जी। साउल ना सर? साउल साउल साउलुन भी कह सकते हैं। साउल क्या है, तुम सलामत रहो, और साउलुन आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी लंबी हो। शुक्रिया के मानी में है, लेकिन लफ्ज़ी माना इस तरह से है। अच्छा जी, इसके अल्फाज मानी जो हैं, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें आप उसको वीडियो को देखें तरतीब से, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किए होंगे। और कल हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साओलसुन तो थर्ड पर्सन के लिए बात होगी। जब हम थर्ड पर्सन, साओल ओलसुन नहीं, साओलसुन। साओलसुन जो है वो थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है। जब डायरेक्ट जिसको हम कह रहे होते हैं उसको हम साओलुन ही कहेंगे। सालासन करके बोलते हैं, साओलासन। वो हो सकता है सेकंड पर्सन के लिए, लेकिन जो साओलसुन है वो थर्ड पर्सन के लिए।